Okay, you are able to see my screen. Yes. Let us open MS Word now. This is a typical interface that you see in a MS Word editor. MS Word editor is the most powerful word processor in the world, as categorized by most of the analysts and most of the critics. Undoubtedly, it is the most popular also in the entire world because, in general, most of the personal computers are working on Windows, and for Windows, the most popular word editing software is MS Word. Of course, you have many other software also available, uh, but this is the being the most popular one. So let us see. This is the interface. Here we have the menu bar. Here we have this is the quick access bar. Then you have a ribbon. Different ribbons are available. These are the rulers. This is the basic typing area, page layout view, and obviously you have a status bar and so on. So let us go ribbon by ribbon and see all the features one by one. What I suggest is you should always keep practicing, because एक बार आपने उसको प्रैक्टिस में ले लिया, उसके बाद में it will become easier and easier for you to use that feature. So जो मैं फीचर आपको यहाँ बता रहा हूँ उसके लिए मैं आपको हैंड्स ऑन भी दे दूंगा, ट्यूटोरियल भी दे दूंगा. You can have there are many YouTube videos already available on the internet. You can use all those, but unless you practice it, you bring that particular practice in your day-to-day drafting, you are not going to just a second, Anna, you are not going to retain that knowledge. You are going to forget that, Anna. So keep practicing, and the best way to practice is कोई एक फीचर आपको यहाँ पे सीखने को मिला है और immediately you start using that feature in your Word documents, in your drafting documents. Okay, so let us go ribbon by ribbon. First of all, we should go and see the options. There are many options available that can make your life easy. Okay, so this is Word 2007. In Word 2030, it comes here at the end of the menu. So go to Word options, and this mini toolbar. This is not my favorite. I keep it generally as switched off, because ये आपका क्या होता है, problem is, okay, this is some content, and as soon as I select it, a mini toolbar opens. So इसका इतनी यूटिलिटी है नहीं जितना कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के तुरंत बाद मुझे अगर इसको सिलेक्ट करना होगा, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट सम डिस्टर्बेंस इन बिटवीन ना. सो इट विल बी लाइक दिस. सो ऊपर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो आई पर्सनली डोंट लाइक इट. और इसके अंदर जो फीचर होते हैं वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते ही हैं, या फिर इसमें इसके जो फीचर हैं वो लगभग सारे ही हमारे पास शॉर्टकट कीज में अवेलेबल होते हैं. So this is generally not recommended, so you can keep this thing off. Okay, then developer tab. By default, this thing is switched off, so you have to manually switch it on, otherwise this developer tab will not be visible. So जब आप वर्ड को इंस्टॉल करोगे ना, it will be like this. व्यू के बाद में कुछ नहीं होगा. मोस्ट प्रॉब्ली आपके कंप्यूटर में आप देखोगे, so व्यू के बाद में कोई रिबन अवेलेबल नहीं होती है, but there is a hidden ribbon which is available here, which is not available, which is not visible by default. So you have to go and click on developer tab and then click OK, so that you get this. And obviously if you want the word screen to be light on your eyes, you can use this particular theme as a black theme, but blue theme is okay. So this is all about themes and all things. I'm going to show you one feature of the MS Word which is very powerful and which is least used. Say for example, there are some texts, some phrases that are available that you have to write almost every day. Can anyone tell me? Can anyone tell me what are the some of the phrases that are available by default? Not available by default. कुछ ऐसे फ्रेज बताइए, कुछ ऐसे सेंटेंस या पैराग्राफ बताइए जो आपको लगभग हर डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है या हर रोज लिखना पड़ता है. हर डॉक्यूमेंट में ना लिखना पड़े,
हर रोज लिखना पड़ता है। ऐसा कोई बताइए एनी एनी फ्रेज। और अगर स्पीकर नहीं है आपका, माइक नहीं है, तो आप चैट विंडो में लिख लीजिए यहाँ पर। हेलो सर। यस प्लीज। सर डेली यूज में सर हम लोग एक लाइन लेटर के लास्ट में हमेशा लिखते हैं, दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड टेक नेसेसरी एक्शन प्लीज। ठीक है ठीक है। दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी टेक नेसेसरी एक्शन प्लीज। एट योर एंड प्लीज। ठीक है, एक ही हो गया। ठीक है, एक ही हो गया। और कौन सी एक लाइन होती है जो आप अक्सर लिखते हो, लाइन या टेक्स्ट? ये लगभग हमेशा हर एक में आता है, राइट? सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, ये सब चीजें एक तरह से नाम अपने आप लिखे होते हैं। नाउ द थिंग इज, अगर आपको ये लाइन लगभग हमेशा ही लिखनी है, व्हाई डोंट यू क्रिएट अ, हाँ, नेम माय पोस्ट एंड डिपार्टमेंट, दैट आल्सो यू कीप राइटिंग वेरी ऑफन, है ना। दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये चीज आपको लगभग हमेशा या तो टाइप करनी पड़ेगी या फिर कहीं से कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी। What I suggest is there are ways available to create kind of shortcuts in this, है ना। Say for example here MR, oh sorry, इसमें नहीं है, मेरे लैपटॉप में है, इसमें नहीं है। So for example ये जो आपने लिखा था, ये वाली जो लाइन लिखी थी, ये जो लाइन है, ये आपको अगर हर बार लिखनी ही है, so why don't I create some kind of shortcut in the MS Word so that I don't need to every time type this thing। एक बार आपने ये लिख लिया है, उसी को आप केवल शॉर्टकट लिखिए और ये करिए। सो that what you can do is you can go to word options and here you can go to proofing and then autocorrect options and here replace text as you type। तो यहाँ पे शॉर्टकट बन जाएगा और यहाँ पे आपको उसको किससे रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है इससे, फुल स्टॉप के साथ, और फॉर एन प्लीज, फॉर एनी नाम का मैंने बना दिया, फॉर एनी, फॉर नेसेसरी एक्शन, राइट। सो फॉर एनी है, ये आपका ये वाला जो फ्रेज है किसी और जगह पे आ सकता है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज यू प्रीफिक्स एंड सफिक्स इट विद सम सिंबल, है ना। जैसे आई माय पर्सनल फेवरेट इज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर फॉर नेसेसरी एक्शन अंडरस्कोर। ओके, ये मेरा शॉर्टकट है, जैसे ही मैं इसको टाइप करूंगा वो पूरा रिप्लेस कर देगा। तो ये हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली आई कैन मेक वन MR नाम से बनाएंगे जिसमें मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। देन फॉर एग्जांपल ACC, ये हो गया। देन उसके बाद में AC2 हो जाएगा। ये डेजिग्नेशन हो गया, है ना। उसके बाद में MOJS हो गया। इस तरह के आप शॉर्टकट बना के रख सकते हो अपने कंप्यूटर में, एंड दीज आर कंप्यूटर स्पेसिफिक। एक बार आपने इसको अपने कंप्यूटर में सेट किया है तो ये वर्ड फाइल के साथ माइग्रेट नहीं करेगा, ये आपके कंप्यूटर पे ही सेव रहेगा, कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे भी, उसी पे ही सेव रहेगा। एंड वंस यू कॉपी दैट फाइल टू अनदर कंप्यूटर, दैट शॉर्टकट विल नॉट बी वर्किंग। सो फॉर एग्जांपल मैंने अभी बनाया था फॉर एन, है ना, ये बनाया था मैंने, और जैसे अंडरस्कोर लगाएंगे ये पूरा टाइप कर देगा। Okay, so this is going to save your time, this is going to reduce your errors, mistakes, spelling mistakes, टाइपिंग की कीज कम लगेगी। ऐसे आप बड़े बड़े पैराग्राफ इसमें सेट कर सकते हो। इसमें एक माइनस पॉइंट केवल ये है, द ओनली माइनस पॉइंट भी, इसमें आप लाइन ब्रेक नहीं लगा सकते, लाइन ब्रेक आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल MR और फिर उसके बाद मैं लाइन ब्रेक में ACC, ये मेरा नाम डेजिग्नेशन दोनों आ गया। और सिमिलरली तो ये मुझे केवल छोटी छोटी कीज टाइप करनी पड़ी, ज्यादा मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, और मैंने ये सारा टेक्स्ट लिख दिया। इसी तरह से कुछ
फ्रेजेस आप फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस का एड्रेस है ना, आपके ऑफिस का एड्रेस आपको कई बार लिखना पड़ता है। कॉन्टैक्ट नंबर्स है जिसमें कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल में ढूंढ के नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वो टाइप करें कॉन्टैक्ट और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सारा एक के बाद एक आ जाएगा, उसमें जो चाहिए उसको छोड़ के बाकी आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करना आसान है, टाइप करना मुश्किल है। So these kind of shortcuts you can create so that your work speed will increase, आपकी गलतियां कम होगी, आपको टाइप कम करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली कई सारी चीजें ऐसी होगी जो कि ऑटोमेट हो जाएगी। सो हम आज के दिन इसी तरह के फीचर्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि आपको अपने काम को ऑटोमेट कैसे करना है, किस तरह से जो इसमें एमएस वर्ड में फीचर्स अवेलेबल है जो लोगों को पता नहीं होते हैं, उन फीचर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। वंस यू नो दिस काइंड ऑफ फीचर इज अवेलेबल विद दिस पर्टिकुलर नेम ऑन दिस पर्टिकुलर रिबिन, उसके बाद अपने एंड पे आप रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में आप सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट माय सजेशन इज, है ना। ये हो गया आपका वर्ड ऑप्शन में जाके प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट। इसमें एक फीचर होता है जो मैं कहूंगा काइंड ऑफ बग ही बोलूंगा, मैं बग नहीं बोलूंगा, वो फीचर नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, तो ये हाईलाइट करता है रेड कलर से, एंड एज सुन एज इट हाईलाइट्स वी नो कि यहाँ पे मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। अगर मान लीजिए राठौर की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको आप राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो। प्रॉब्लम इज इन जनरल whenever you are writing everything in capital, then by default this spell check will not work। ये इसकी प्रॉब्लम है, ये इसका शॉर्टकमिंग है। So as soon as you convert something in capital letters, that spell check is not going to work। ये इसका by default setting ऐसी ही होती है। So what happens is generally किसी भी रिपोर्ट के फ्रंट पेज पे, कवर पेज पे हम क्या लगाते हैं, जनरली हम कैपिटल्स में लिखते हैं ना, रिपोर्ट ऑन मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन सो एंड सो प्रोजेक्ट जनवरी 2025 लाइक दैट, है ना। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेंट्रल वाटर कमीशन सब कुछ लिखा रहता है। बट उसमें अगर आपने सेंट्रल वाटर कमीशन में ही आपने स्पेलिंग गलत कर रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ही आपने मान लीजिए स्पेलिंग गलत कर रखी, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगी, ये मिनिस्ट्री में ये चीज आपको मालूम नहीं पड़ेगी कि आपने ये स्पेलिंग गलत कर रखी है। सो the answer to that is you go to word options and then you go to proofing and then you uncheck this ignore words in uppercase। by default ये checked होता है, and click OK। so now it is going to run spell check as you type on the capital letters, so that immediately you know कि यहाँ पे ministry की spelling गलत है और necessary की spelling गलत है। so generally cover page पे ये problems आती है कि cover page पे आप लिखने जा रहे हो और आपकी spell check ही नहीं चल रहा है, okay, तो ये issues आते हैं। नेक्स्ट इज ये आपका हो गया डिस्प्ले हो गया, ये बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ विल गो रिबन बाय रिबन। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल कि पेस ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड या बहुत ज्यादा स्लो या बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है, इज इट ओके? यस सर, ओके। ठीक है, ओके। बीच में कभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप या तो चैट विंडो में पूछ सकते हैं या फिर मुझे अपने माइक से पूछ सकते हैं। ओके, नाउ this is the first ribbon। okay, we'll go ribbon by ribbon, we'll try to cover as much as possible। so ribbon में copy paste के फीचर आपको अवेलेबल हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल इनटू डिटेल ऑफ दैट। फॉर्मेट पेंटर आपको लगभग सभी को पता होगा कि जो पर्टिकुलर फॉन्ट का जो भी साइज वगैरह है, जैसे फॉन्ट, ये इसका फॉर्मेट है, तो आप इसका फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हो तो उसका फॉर्मेट कॉपी होता है, कंटेंट कॉपी नहीं होता है, केवल फॉर्मेट कॉपी होता है। इसका जो फॉर्मेट है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट पेंटर। इट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, बट आई वुड सजेस्ट यू शुड नॉट गो विद दिस, यू शुड गो विद स्टाइल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। ठीक है, तो आप, अच्छा अभी आप कितने लोग हैं इसमें जो अभी आप मोबाइल पे चला रहे हैं इसको, इस मीटिंग को? अभी कितने लोग मीटिंग पे मोबाइल पे देख रहे हैं? कुछ लोग मुझे पोर्ट्रेट में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये लोग शायद मोबाइल पे चला रहे हैं, आपको शायद स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हो, है ना। ये इतने छोटे छोटे अक्षर आपको क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे? रीडेबल है आपको? हाँ सर। ओके, गुड, ग्रेट, अच्छी बात है अगर दिख रहा है तो, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे ऑलरेडी इतने छोटे छोटे फॉन्ट है तो कैसे आप देख पाओगे। चलिए ठीक है,
ये हो गया आपका फॉर्मेट पेंटर। कॉपी पेस्ट तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट इज फॉन्ट, फॉन्ट साइज, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब सब आप लोगों को पता ही होता है, सब हम इस्तेमाल करते ही हैं। इनके शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, जैसे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के शॉर्टकट है। अगर आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट इन वर्ड, तो आपको आ जाएगा कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आपका सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होता है, लाइक दैट, है ना। ये सब भी बुलेट, नंबर, स्टाइल्स, ये सब भी चीजें बहुत इजी है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्टाइल्स इंपॉर्टेंट है, ये स्टाइल्स जनरली लोग यूज करते नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू ये स्टाइल्स जो है, दीज स्टाइल्स आर गोइंग टू चेंज एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ये इन मल्टीपल वेज, ओके, इन मल्टीपल वेज। सो कैसे मल्टीपल वेज होती है हम अभी उसको डिस्कस करते हैं। लेट मी जस्ट ओपन वन सैंपल फाइल। दिस इज वन प्रैक्टिस, ओके, दिस इज वन फाइल। तो जब भी कोई आपको रिपोर्ट बड़ी बनानी हो, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप पहले उसका टेक्स्ट कॉपी करिए, ओके, पूरा टेक्स्ट लिखिए, पूरा टाइप करने का काम आप पहले कर लीजिए। आई एम वंस अगेन सेइंग कि हमारा यहाँ पे इस सेशन का मोटो ड्राफ्टिंग नहीं है, हमको हमारी स्पीड को कैसे इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करना है, वो है, राइट। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ बिग रिपोर्ट लाइक 200, 300, 500 पेजेस, ऐसी कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उस रिपोर्ट में आप फॉर्मेटिंग पे सबसे शुरू से मत लगिए। आप पहले काम करिए टाइपिंग का, फॉर्मेटिंग आपका स्टाइल से हो जाता है और बड़ा अच्छे से होता है, बहुत इजीली होता है। तो वही देखते हैं स्टाइल्स को आप कैसे यूज करेंगे। तो जैसे ये मैंने पूरी फॉर एग्जांपल रिपोर्ट बना ली है, ये रिपोर्ट पूरी बना ली है, और इस रिपोर्ट में मेरा पूरा टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ, चार्ट्स, ये सारे आ गए, राइट। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है, और चैप्टर का फॉर्मेट ये होना चाहिए, इट शुड बी सेंटर, इट शुड बी बोल्ड with line spacing of 1.5 and font size 40, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर द चैप्टर टाइटल। सो इसमें एक टाइटल ऑलरेडी नाम का बना हुआ है, आई डोंट वांट दिस थिंग टू बी द दिस, मुझे अभी जो फॉर्मेट है इसको मुझे चाहिए, ये टाइटल है, तो इसको राइट क्लिक को, टाइटल को राइट क्लिक करके अपडेट कर दीजिए ना। जिस पे भी आप ले जाके, जहां पे भी आपका चैप्टर का नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा एक चैप्टर का नाम यहाँ पे है ना, ऑब्जर्व वेदर चेंजेस, ये मेरा एक नया चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है। तो इस पे जाके आपको केवल इस पे क्लिक करना है, ओके, जहां चैप्टर चालू हो रहा है वहां पे आपको उसको जाके क्लिक करना है। सिमिलरली ये मेरी हेडिंग 1 है, ये पहली हेडिंग है, मेजर हेडिंग। मेजर हेडिंग इज फॉर एग्जांपल 14, लेफ्ट लाइन, बोल्ड, टाइम्स न्यू रोमन, font size 14 and color is let's say blue। ये मेरा this is the format for my heading, okay। now select this thing and heading 1 को राइट क्लिक करके अपडेट कर लो। now wherever, जहां पे भी आपको हेडिंग का ये वाला फॉर्मेट चाहिए, आपको वो 4 फॉर्मेटिंग अलग अलग नहीं लगानी पड़ेगी, बस यहाँ जाके क्लिक करेंगे आपकी फॉर्मेटिंग लग जाएगी, ओके। एविडेंस ये आपकी लग गई, ओके। देन उसके बाद एविडेंस फॉर रैपिड क्लाइमेट चेंज, ये आपकी हेडिंग लग गई। अब जैसे सी लेवल राइज है, नाउ दिस इज द एविडेंस ना, इसमें ये मान लीजिए दिस इज फॉर एग्जांपल माय हेडिंग 2, सेकंड लेवल हेडिंग। दिस थिंग इज बोल्ड, फॉन्ट साइज 12 एंड कलर लेट्स से रेड, ओके। जनरली रेड होता नहीं है, पर फिर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एंड लेट्स से इटैलिक। हेडिंग 2 पे जाके इसको राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे, इसको जाके हेडिंग 2 पे लगाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि इससे किस तरह से आपको अपनी पूरी पूरी रिपोर्ट में आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो यूनिफॉर्म रहेगी, प्रोफेशनल दिखेगी, गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, और उसको मॉडिफाई करना पड़ा इजी। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। नाउ इंडियन सिनेरियो हेडिंग 1, देन ये आया था आपका ऑब्जर्व्ड रेनफॉल इवेंट्स, ये हेडिंग 2। इसी तरह से हेडिंग 3 भी बना सकते हो, हेडिंग 4 भी बना सकते हो, जितना आप मर्जी उतना बना सकते हो। ये 3 हो गए। इम्पैक्ट ऑन हिमालयन ग्लेशियर्स हेडिंग 2, डायरेक्ट इम्पैक्ट हेडिंग 1। देन इस तरह से मैं खत्म कर लिया।
अब आप इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि वो जो मैंने 4 फॉर्मेटिंग अलग अलग लगाई थी वो हर एक पे लगानी होती तो मुझे कितना टाइम लगता। फॉर्मेट पेंटर से काम करता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर में भी एक लिमिटेशन आता है जो अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, पूरी रिपोर्ट के अंदर में बुलेटेड कर दिया, एंड लेट्स से बुलेटेड का एक और हेडिंग बना सकते हो आप। अब बुलेटेड जहां पे भी रखने हैं उसकी फॉर्मेटिंग ये रखनी है मुझे कि ये बुलेटेड यहाँ से चालू होना चाहिए, उसमें इतना गैप होना चाहिए, और बुलेट का जो टाइप है वो इस तरह का होना चाहिए। ये मेरा बुलेट का फॉर्मेट है, और इसको जहां भी इस्तेमाल करूं हर बार मुझे कॉपी नहीं करना पड़े, इसके लिए मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल, है ना, बुलेटेड नाम से। ये बुलेटेड नाम से मैंने एक स्टाइल बना ली। दिस इज कस्टम स्टाइल, है ना, रूल्स ऑफ एनडब्ल्यूएम हेडिंग 1 में आएगा। ये वाला भी सारा, ये सब आपका उसी में जाएगा, बुलेटेड में जाएगा। ठीक है ना, देखिए मुझे सिर्फ एक सिंपल क्लिक करना है और वो वही वाली फॉर्मेटिंग सेम लेके आएगा। जब सेम फॉर्मेटिंग लेके आएगा तो आपको कभी भी इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर, अलाइनमेंट, एवरीथिंग, इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। हर बार वो अपने आप ऊपर से उठा के लेके आएगा। मिटिगेशन एंड, अच्छा हाँ, ये आपका एफॉरेस्टेशन थर्ड हेडिंग आ गया, एंड अडेप्टेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने एक 16 पेज की रिपोर्ट में, 16 पेज की रिपोर्ट में सारी फॉर्मेटिंग हार्डली 1.5 से 2 मिनट के अंदर लगा दी, जिसमें कि मैं आपको समझा भी रहा था। अगर मुझे समझाना नहीं होता और मुझे केवल लगानी होती तो और भी जल्दी लगती, क्योंकि उस केस में मैं इसको जूम आउट कर लेता और यहाँ से यहाँ यहाँ करके कंट्रोल 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 सिलेक्ट करके, कंट्रोल कंट्रोल सिलेक्ट करके एक साथ सभी में लगा देता। देखिए जैसे ये है 1 2 3, 1 2, अरे सॉरी ज्यादा ही छोटे सब फॉन्ट हो गए, और इनको एक साथ हेडिंग में लगा सकते हैं, राइट, बजाय कि अलग अलग लगाने के। और ये साइज तक ठीक रहता है, उससे ज्यादा छोटा करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। ओके, सो अब ये हो गया फॉर्मेटिंग। सिमिलरली सेंटर लाइन रखना है, राइट अलाइन रखना है, लेफ्ट अलाइन रखना है। इसका एक दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी पूरी रिपोर्ट में इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कलर का अच्छा नहीं दिख रहा है, ये जो आपकी 2 है, हेडिंग 2, ग्रीन कलर, या इट शुड नॉट बी इटैलिक, है ना, नॉन इटैलिक नॉर्मल, बट इट शुड बी ग्रीन कलर। तो अब आपको अगर फॉर्मेट पेंटर लगाए होते हैं तो एक जगह पे जाके पूरे ही रिपोर्ट में आपको सब जगह पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे स्टाइल बहुत काम करती है। इसमें आपको स्टाइल में हेडिंग 2 में राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई करना है, और यहाँ से आप चेंजेस कर लीजिए। इसको आपको ग्रीन कलर करना है तो ग्रीन किया, थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन। और इटैलिक नहीं करना है ना, इटैलिक हटाया और ओके करा। अब आपके पूरी रिपोर्ट में जहां जहां पे हेडिंग 2 है वो सब उस फॉर्मेट में एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर बोलते हैं कि नहीं हेडिंग 1 का आपको ब्लैक कलर होना चाहिए तो मॉडिफाई करेंगे, ब्लैक करेंगे, ओके कर देंगे, तो हेडिंग 1 आपका सब जगह पे ये हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द स्टाइल्स, कि आपकी पूरी रिपोर्ट में स्टाइल एक जैसी रहेगी और कहीं पर भी इनकंसिस्टेंसी रहेगी, कंसिस्टेंट स्टाइल रहेगी, और उसको चेंज करना हो फ्यूचर में तो बड़ा इजी है। ऐसे में आपको मान लीजिए आपके 50 हेडिंग है तो 50 जगह जा जाके फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, इसका एक दूसरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपका ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपका ये पेज नंबर, लेट मी इंसर्ट अ पेज नंबर बॉटम ऑफ पेज नंबर है। ओके, तो पेज नंबर 1 जो है उसमें आपका 2 हेडिंग आई है, एक टाइटल आया है। पेज नंबर 2 में आपका एक हेडिंग आई है, एक ये वाला सब हेडिंग आई है, ये सब हेडिंग से इसमें पेज नंबर 3 में इस तरह से। तो आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है तो उसके लिए आपको मैनुअली टाइप करना पड़ता है जनरली, कि आप ये टाइप करोगे, फिर उसके बाद उसका पेज नंबर जाके देखोगे, फिर टाइप करोगे, फिर ये देखो टाइप करोगे, फिर पेज नंबर जाके देखोगे, इस तरह से चलना पड़ता है। जबकि अगर आपने स्टाइल यूज करी है तो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बन जाती है। वो अभी हम देखते हैं कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे
टेबल ऑफ कंटेंट लगानी है। मेरे इस पूरी रिपोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा चैप्टर, कौन सी हेडिंग, सब हेडिंग जो है किस पेज पर है, राइट। तो यू हैव टू गो टू reference, go to table of contents, and instead of using this predefined table, you should go and click on this insert table of content. Okay, क्योंकि predefined में केवल heading 1 2 3 होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। So tab leader, I personally don't prefer any tab leader, but you can use if you want. और यहाँ पे जाके आपको पहले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और इसमें सेट करना है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट में। ओके, तो ये अलग अलग स्टाइल आपके पास अवेलेबल है, जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, वो सारी यहाँ पे आ जाती लिखी हुई। ये बुलेटेड नाम की हमने बनाई थी, हेडिंग 1 2 3 है यूज करी है, और एक टाइटल नाम की यूज करी है। तो टाइटल इज द चैप्टर, इट शुड बी 1, टीओसी का लेवल 1 होना चाहिए। ओके, उसके बाद हेडिंग 1 जो है वो 2 होना चाहिए, हेडिंग 3 है वो लेवल 3 में आना चाहिए, और इसकी जरूरत नहीं हमको, ठीक है ना। तो ये हमारी टेबल ऑफ कंटेंट ये बन गई। अब देखिए इसमें इसका प्लस पॉइंट एक ये रहा कि इसने अपने आप ही स्टाइल से, अपने ऑटोमेटिक जो स्टाइल है उस स्टाइल से उसका टेक्स्ट भी उठा लिया और उसका सिलेक्टेड पेज नंबर भी उठा लिया। ओके, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपने वो चीज को ऑटोमेट कर दिया जो आप मैनुअली कर रहे थे, राइट। नाउ एक बेनिफिट इसका और भी होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सब काम कर लिया, उसके बाद में फॉर एग्जांपल ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, वो आपका पेज नंबर 5 पे है, राइट। कौन सा ग्लोबल टेम्परेचर, कहाँ गया वो, ये रहा ग्लोबल टेम्परेचर राइज, पेज नंबर 5 पर है, राइट, पेज नंबर 5 पर है। बट किसी वजह से कुछ कंटेंट इसके पहले आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये वाला कंटेंट है, ये यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और ये इतने सारे कंटेंट ऐड कर दिया, और ये जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है ये आपका चला गया पेज नंबर 7 पे, पहले 5 था अब 7 पे चला, कुछ नया कंटेंट ऐड हुआ, ये वाला कुछ अलग अलग कंटेंट ऐड हुआ। तो इसके लिए आपको अपनी टेबल को मैनुअली रिवाइज करने की बजाय राइट क्लिक करेंगे, आप इसको राइट क्लिक करेंगे एंड अपडेट फील्ड करेंगे और अपडेट एंटायर टेबल ओके करेंगे, तो आपकी पूरी ही, ये तो खैर मैंने डाला था, पेज नंबर 7 में ग्लोबल टेम्परेचर राइज पेज नंबर 7 में आ गया। तो आपके सारे कंटेंट, टेक्स्ट और पेज नंबर्स ये अपने आप अपडेट कर देगा। एंड दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द स्टाइल for creating table of content. Similarly, you can create table of figures, list of tables, list of charts, list of pictures, list of charts, like that. तो इस तरह के आपके जो लिस्ट ऑफ इमेजेस, इस तरह के जो आपके अलग अलग कंटेंट अवेलेबल है, उसके अगर आपको लिस्ट बनानी है, वो सारे आप टीओसी से ऑटोमेटेड वे में बना सकते हैं। और जब भी आपको इसको प्रिंट लेना है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेते टाइम पे, सेव करते टाइम पे ये फील्ड अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, इसमें पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली उठाता है। तो ये इसका स्टाइल्स का सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है। फर्स्ट बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट में आपकी फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट, यूनिफॉर्म, प्रोफेशनल और इजी टू चेंज इन द फ्यूचर हो जाती है। दूसरा है कि आप इसमें ऑटोमेटेड लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब चीजें ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ये इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट है। अभी तक में किसी को कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं। ये पहला वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया है। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। गुड आफ्टरनून सर। जी हेलो सर। हाँ बताइए। सर अगर नंबरिंग करना हो, जैसे लाइक 6, 6.1, 6.1.1, ये नंबरिंग किस तरह से करेंगे अगर करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफेशनल जो रिपोर्ट होती है उसमें नंबरिंग भी होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यू आर क्रिएटिंग एजेंडा फॉर सम मीटिंग, राइट, एंड लेट्स से मीटिंग नंबर इज 73। ओके, 73 है तो उसका होता है आइटम नंबर 3, 73.1, 73.11 लाइक दैट, ठीक है।
उसमें लिखा होता आइटम नंबर 73, आइटम नंबर 73.1, आइटम नंबर 73.11 लाइक दैट। ठीक है, इसी में करता हूँ मैं, इसी वाली फाइल में करता हूँ। इसी में एक थर्ड हेडिंग भी बना लेते हैं, थर्ड हेडिंग भी बना लेते हैं कहीं पर, कहाँ पर हो सकता है ये, हाँ इसको करते हैं। इसमें तो थर्ड हेडिंग की नीड ही नहीं लग रही। हाँ यहाँ पे ले सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, देन ग्रीन कार्स, रिडक्शन इन इमिशन और इनोवेशन इन ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक दैट। इसको बना लेता हूँ मैं, ये हेडिंग 2 है, इसको बना लेते हैं हेडिंग 3। ठीक है, और इसका कलर कर देते हैं लेट्स से रेड, रेड रेड या कर देते हैं ब्लू कर देते हैं ना, तो ये हेडिंग 3 होगा, हेडिंग 3। ठीक है ना, अंडरलाइन भी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हेडिंग 3 हो गया, ये भी हेडिंग 3 हो गया, ये भी हेडिंग 3 हो गया, ग्रीन कार भी हेडिंग 3 हो गया, अश्योर्ड इरिगेशन भी होगा, ये भी हेडिंग 3 हो गया। ठीक है ना, ठीक। अच्छा, इसमें मैंने हेडिंग 3 लिया ही नहीं था, इसलिए नहीं आया, इसको फिर से डिलीट करके रखना पड़ेगा। References, table of contents, insert, options, heading 1, 2, 3, 4 और टाइटल था वो होगा 1। तो 1 नंबर पे टाइटल, देन 2 नंबर पे हेडिंग 1, देन 3, देन 4, है ना। अभी देखते हैं, ये आ गया यहाँ पर, ये हेडिंग 3 आ गया। अब इसमें आपका जो क्वेरी है कि इसमें हमको नंबरिंग देनी है डॉट के साथ में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकॉन। नंबरिंग में मत करिए, उसके बाद में थर्ड वाला आइकॉन होता है मल्टी लेवल लिस्ट, इस मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करिए, गो टू डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, डोंट यूज एनी वन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल में लिखना आइटम नंबर 2 लाइक दैट। तो डिफाइन अ न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, एंड यहाँ पे आप चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। इसमें आप कैसे मॉडिफाई करोगे, द फर्स्ट लेवल शुड एज, अच्छा नंबरिंग में हम जनरली क्या करते हैं 010203 करते हैं, 010203 करेंगे, ये नहीं लगेगा, और इसमें आएगा आइटम नंबर, लेट्स से मीटिंग नंबर एग्जांपल 73 मैंने बोला था, 73.01 एंड क्लिक। सेकंड वाला लेंगे, उसमें भी वही आएगा, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, दूसरे को करेंगे, अच्छा इसी में आ गया ना, इसी जगह पे, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, यहाँ पे जाएंगे, डिफाइन पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पहले इसको इस पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद में इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ से करेंगे। अब ये वाला फॉर्मेट आ गया है, इसमें आएगा आइटम नंबर 73.1 की जगह पे आप कर दोगे 01। ठीक है, दूसरा आएगा 73.01.01, थर्ड वाला होगा आपका 73.0, ये वाला। ठीक है, फोर्थ वाला भी ले सकते हो, पर अभी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फोर्थ भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। जनरली 4 से ज्यादा की आपको नीड पड़ती नहीं है, इससे ज्यादा। और फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये लेंथ ज्यादा हो जाती है। अब इसको आप हेडिंग नंबर 1 में सेव करना जरूरी है, क्योंकि ये आपने अभी मैनुअली अपडेट किया है, आपने इसको जो स्टाइल लगाई है वो अभी आपने स्टाइल में सेव नहीं किया है, अभी उसको एक एक पर्टिकुलर हेडिंग का फॉर्मेट दिया है, क्लिक करके आप अपडेट कर लीजिए, अपडेट,
अब सेकंड वाला जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली, ये अपने आप लग गया, ये अपने आप लग गया, राइट। तो 73 मतलब 73 इज द मीटिंग नंबर, इज द हेडिंग नंबर, देन 06 इज द सब हेडिंग नंबर। तो जब सबसे नीचे जाएंगे हम ब्लू वाले में, उस देखेंगे तो 3 लेवल का नंबर लग जाएगा आपका। ये 73.05 आ गया। जो ब्लू वाला आएगा वो और नीचे आएगा, हाँ ये वाला आया, देखा 73.08.01.01। So this is how you can create a custom number format for your report or for your agenda or minutes. तो इस लगाते हैं हम, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट और भी होता है कि बीच में कोई अगर नंबर, फॉर एग्जांपल ये वाला कंटेंट है जो इसके बीच में ऐड हो गया यहाँ पर, तो ये 7 से अपने आप 8 हो, और सिमिलरली इसके अकॉर्डिंगली 73.08 की जगह 09 हो गया, ये वाले 009.01.02 हो गया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट्स वर्क एंड इट इज रियली इजी टू यूज दीज काइंड ऑफ फीचर्स। आपको एक ही बार इसको सेट करना है, उसके बाद आप जब कंटेंट डिलीट या ऐड करते हैं तो बाद वाले नंबर अपने आप सेट हो जाते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? और कुछ क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो बताइए। नंबरिंग इज क्वाइट इजी, लेकिन ये पता होना चाहिए कहाँ से करना है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया तो बड़ा इजी रहता है, और एक बार आपने उसका नंबर सेट कर दिया उसके बाद बड़ा इजी रहता है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल जी। हेलो सर। एक सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। हाँ बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर किसी कॉलम में जैसे हम लिखे हुए उसको अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, जैसे ए से सबसे ऊपर होना चाहिए कॉलम में, बी वाला उसके बाद। कॉलम में ये सर। हो जाएगा। देखिए टेक्स्ट लिखा है और उसमें आपको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है ना। जहां पे ऐसी नीड हो वहां पे आई वुड सजेस्ट कि यू शुड नॉट इंसर्ट अ सिंपल वर्ड टेबल, यू शुड इंसर्ट अ एक्सेल ऑब्जेक्ट। वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे स्लाइड, बताऊंगा अगली वाली स्लाइड में आने वाला। ऑप्शन तो अब हम पे चलते हैं। जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर उसमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट। इंसर्ट में कवर पेज इंसर्ट करना है, अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है, ये आप अपनी रिपोर्ट में यूज कर सकते हो। नथिंग ग्रेट इन दैट। इंसर्ट करना तो सिंपल, एक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा जिसमें आप फ्यूचर में कंटेंट डाल सकते हो। पेज ब्रेक मतलब नेक्स्ट पेज जाना है, नेक्स्ट पेज स्टार्ट, ये सब बड़े इजी है। इसके बाद आता है टेबल। टेबल तो कोई भी इंसर्ट कर सकता है, बड़ी इजी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है जिसमें कि 4 कॉलम होने हैं। नेम, सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑफिस, ये 4 कॉलम आने हैं। एड्रेस लिखा है जिसमें, है ना। तो मैं जनरली क्या करूंगा, दिस इज यूजुअल प्रैक्टिस राइट। तो ये 4 बाय समथिंग की टेबल में को बनाता हूँ। इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद नेम लिखते हैं, उसके बाद में जनरली आप लिखते हो डेजिग्नेशन, और उसके बाद में ऑफिस एड्रेस। ये आपको मैं बता रहा हूँ यूजुअल प्रैक्टिस है, दिस इज व्हाट यूजुअल प्रैक्टिस इज। ओके, और उसके बाद में फिर इसको हम इस तरह से करते हैं, ऐसा करते हैं। नेम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, ऑफिस एड्रेस के लिए थोड़ा आपको ज्यादा देना पड़ता है ना। इस तरह से करते हैं। इट इज यूजुअली अ लिटिल बिट मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस। उसकी बजाय आपको टेबल दूसरी तरह से बनानी चाहिए। जैसे आपको सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी नहीं लिखना, और छोटा करना है अगर इसको तो SR लिख देते हैं बस, या SL लिख देते हैं।
सीरियल। उसके बाद में आप व्हाट यू डू इज आप प्लस से शुरू करिए, फिर आप SR लिखिए, फिर डैश लगा के फिर प्लस लिखिए, फिर आप नेम लिखिए, नहीं सॉरी एक सेकंड, सीरियल सीरियल, देन आपको यहाँ पे मान लीजिए नाम चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे डेजिग्नेशन चाहिए, और यहाँ पे मान लीजिए ऑफिस एड्रेस चाहिए। ओके, अब जहां पे आपको लाइन डालनी है वहां पे आपको प्लस लिखना है, और बाकी जगह पे आपको माइनस लिखना है। प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, और सबसे लास्ट में जाके एक लास्ट में जाके प्लस, और यहाँ लास्ट में जाके एंटर करोगे, एग्जैक्टली उसी साइज के आपके कॉलम बनेंगे, उसी साइज के आपके कॉलम बनेंगे। उसके बाद आप इनको उठा के ले आइए। तो आपको कॉलम बनाने के लिए उसको मॉडिफाई करने की नीड नहीं है, आप एक बार और फिर उसके बाद टैब टैब लगाते जाओगे तो ये कॉलम अपने आप बनते जाएंगे। तो ये जो तरीका होता है, इससे आपके जो कॉलम होते हैं वो अपने आप ही सेट हो जाते हैं। ये अभी यहाँ पे इतना डोमिनेंट दिख नहीं रहा है, बट जब आपका पेज टेबल बड़ी होती है और A3 साइज में जब आप टेबल बनाते हो या फिर लैंडस्केप में टेबल बनाते हो, उस केस में ये ज्यादा मायने रखता है कि आपको पहले से पता है कि आपको कॉलम इतने इतने बड़े रखने हैं, वहीं पे ही वो लाइन उठाता है, आपको अलग से ड्रैग नहीं करना पड़ता। एक ये प्लस पॉइंट है। और दूसरा है कि जो अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको उसमें सॉर्ट करने की नीड लगती है इन केस, या मान लीजिए कुछ फॉर्मूले लगाने हैं, है ना, फॉर्मूले लगाने हैं, तो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अमाउंट मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे राजीव, है ना, एंड देन ये कुछ 3 रैंडम नाम लिए मैंने, है ना, हो सकता है आप में से किसी के नाम हो भी सकते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन, और इंटरेस्ट अमाउंट इज लेट से 2000, 3000, 3300 रुपए और 4200। अब आपको यहाँ पे लिखना है टोटल, टोटल अमाउंट यहाँ लिखना है। तो इसका तरीका ये होता है, इस टेबल के अंदर में यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये चीज आपको शायद पता होगी, आपको पता होगी कि यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, सम ऑफ अबव एंड क्लिक ओके। तो ये सम लगा देता है, बट इट इज एक्चुअली अ फील्ड। तो फील्ड क्या होगा, जब आप इसको अपडेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने इसको 3500 किया, ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, इसमें आपको जाके इसके ऊपर ले जाके F9 करना पड़ेगा। F9 से अपडेट फील्ड होता है F9। ओके, या जैसे मैं 4200 को 4700 करता हूँ, यहाँ ले जाके या तो राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड करिए, तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, इससे बेटर ये है जहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला भी बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। एमएस वर्ड में फॉर्मूलेज बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। ओके, फॉर्मूले में आप जाओगे तो यहाँ पे जनरली फॉर्मूलेज बहुत लिमिटेड अवेलेबल है ना। ये सॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आता है कि फॉर एग्जांपल मुझे सॉर्ट करना है, बाय नेम सॉर्ट करना है, तो इस पूरी टेबल को जाके सॉर्ट किया, और कॉलम नंबर 2 से करना है, कॉलम 2 से करना है, ओके करना है, ये आपका सॉर्ट हो गया। लेकिन इसने पूरा गड़बड़ कर दिया। सॉर्ट करना है कॉलम 2 से और क्लिक ओके, ये आपका सॉर्ट हो गया। सॉर्ट तो हो जा रहा है, वो इजी है। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा वो चीज हो गई यहाँ पे, बट मेरा सजेशन ये है कि ऐसा जब केस होता है, जब आपको कहीं कुछ फॉर्मूला लगाना होता है या सॉर्ट करना होता है, उस केस में आप सिंपल वर्ड की टेबल को यूज करने की बजाय एक्सेल का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करिए। ओके, एक्सेल का ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट में जाके टेबल में जाके यहां से टेबल बनाने की बजाय यू गो टू एक्सेल स्प्रेडशीट, ये इसका सॉल्यूशन है। एक्सेल स्प्रेडशीट आपने ये डाल दी है, इसके बाद में एक्सेल की सारी फंक्शनैलिटी आपकी चलेगी इसके अंदर। जितना एक्सेल में फॉर्मूले लगा सकते हैं, जो फंक्शनैलिटी आपको चाहिए, अब देखेंगे तो आप टॉप में रिबन भी होती है, वो एक्सेल की बन जाती है। ओके, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल इसमें कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा इसमें फॉर्मूला में कम ज्यादा कर लेते हैं।
ठीक है, ये टेबल बन गई। इसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको चाहिए वैसा। ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अब इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे इसको, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस, ये ऑल। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है कि द मोमेंट यू, इसको छोटी कर लेता हूँ टेबल को, जैसे ही मैंने इमीडिएट, जैसे ही मैं अमाउंट चेंज करूंगा इमीडिएट ही चेंज हो जाएगा, इसमें एडिटिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एज सुन एज आई चेंज द अमाउंट इमीडिएटली इट विल चेंज। तो 2000 का 2500 करेंगे तो नीचे फॉर्मूला में इमीडिएट चेंज होगा। उसमें कहीं ये गलती नहीं होगी कि आपने उसको अपडेट करना भूल गए और उसकी वजह से आपका फॉर्मूला आउटडेटेड रह गया और प्रिंट में गलत आ गया। वैसे प्रिंट देने के टाइम पे फॉर्मूलाज अपडेट होते हैं, फील्ड अपडेट होते हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो विद द एक्सेल शीट। अभी आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए, आपको फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ABC, एक मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो वो आप वर्ड में फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, राइट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। MS वर्ड में आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो एंड दिस इज सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये देखिए आप MS वर्ड के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट वाला आ गया, देन डिटरमिनेंट आ गया और x1 x2 इसकी वैल्यूज हमको लिखनी है, इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। यही होता है ना, गलत तो नहीं लिखा है। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई और ये आपकी माइनस की जगह -20, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप इमेजिन करिए कि आपने MS वर्ड के अंदर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की इक्वेशन लगा दी, तो ये फॉर्मूला आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन MS वर्ड के अंदर में सॉल्व कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में MS वर्ड के अंदर में हो नहीं रहा है, ये हो रहा है आपका एक्सेल शीट के अंदर में। इसका बेनिफिट ये होता है जब आप डिजाइन मेमो बनाते हो, तो डिजाइन मेमो बनाते टाइम पे ये चीज बड़ी काम आती है। इसमें आप ड्राफ्टिंग है वो आप वर्ड में करिए और जो इक्वेशन सॉल्व करने का काम है वो आप MS एक्सेल में कर लीजिए, तो इससे आपके डिजाइन मेमो वगैरह बहुत अच्छा बनते हैं। जहाँ पे भी आपको इक्वेशंस लगानी है वहां पे आप टेबल के फॉर्म में MS एक्सेल की एक वर्कशीट डाल दीजिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये की आती है कि इसमें ये नंबर, ये लाइनें दिखाई देती है, ये लाइनें जो दिखाई दे रही है ग्रिड लाइन, उसको आप ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे जाके व्यू में जाके यहाँ पे ग्रिड लाइंस ऑफ कर दीजिए, तो आपकी टेबल में वो ग्रिड लाइन दिखना बंद हो जाएगी। वैसे प्रिंट में आती नहीं है, पर आपको फिर भी डिस्टर्ब नहीं करे इसके लिए आप इसको हटा सकते हो। यहाँ पे जाके आप फिल्टर भी लगा सकते हो, सॉर्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूलेज भी लगा सकते हो, आपस में इक्वेशंस को लिंक भी कर सकते हो, सेल्स को भी लिंक कर सकते हो। ये चीजें MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होती है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर यूजिंग द पावर ऑफ MS वर्ड फॉर ड्राफ्टिंग and you are using the power of MS Excel for calculation and formula building, formula insertion। तो इस तरह से आप एक्सेल और वर्ड दोनों की पावर को एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, राइट। एग्रीड, सभी क्लियर है अभी तक? मैं इसको सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट इज सेकंड वाली टैब में है। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जिसने क्वेश्चन पूछा था अभी मुझसे, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? और